Hi guys, welcome to another episode and one of the most important episodes of our channel, Sim Sim and Farkasm. And this is very important because today we are having the final of India and New Zealand. बहुत ही important match है and initial thoughts सबसे पहले मैं आप दोनों के पहले लेना चाहता हूँ उस पे. चलो Rashid. गो फॉर इट। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ। आई थिंक वेरी एक्साइटिंग। पूरा स्टेडियम भरा होगा विद इन ब्लू कलर्स। होपफुली हम वो जिंक्स अहमदाबाद स्टेडियम का तोड़ेंगे एंड होपफुली वील कम ऑन टॉप। आई पर्सनली थिंक मैच इतना एक्साइटिंग नहीं होगा जैसा इंडिया और इंग्लैंड के अगेंस्ट हुआ था। दैट्स माय थिंकिंग, क्योंकि हम मुझे ऐसा लगता है हम अच्छे से जीत जाएंगे। बट या, एक्सपेक्टिंग अ गुड मैच एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू हम्म, कौन हराएगा? Common. Don't say that line today. इट। मेरे हिसाब से आई एम आल्सो वेरी हैप्पी, फोर्थ consecutive ICC final that we have made into, but very different from last three क्योंकि 23 में we were favorites, 24 में भी we were favorites, और 24 और 25 चैंपियंस ट्रॉफी में भी we were favorites, और तीनों में you sort of expected कि okay, मतलब obviously क्रिकेट में तो कुछ भी हो सकता है, but you expected India to win. This one is slightly different because India's performance has been, on and off. Some players are still not performing. Unfortunately, they've lost their form. है ना, flow में नहीं वापस आ पा रहे हैं. तो sort of for me personally, I'm just not able to visualize कि क्या होगा, कैसे होगा, कैसे जीतेंगे. Because in all the previous sort of finals, there was a formula that India was like, if we were chasing, then there was a formula that okay, in chasing, like for Champions Trophy we were chasing successfully in every game, right? And we batted first in I think one of the games, and उसमें भी हम बड़े आराम से जीते थे. So there was a formula, है ना. 23 में एक I फॉर्मूला think था कि हमारी बॉलिंग थी. good thing. 24 में हमारी फॉर्मूला था कि हमारी बॉलिंग भी अच्छी थी, बुमराह, अर्शदीप, एंड स्पिनर्स, एंड देन बैटिंग भी, रोहित एट द टॉप, कोहली इन द मिडल. तो इस बार कुछ फॉर्मूला नहीं है सेट. That is still वो fun. थोड़ा हार्ड टू विजुअलाइज, बट यार, फॉर्मूला तो सेट है। अभिषेक जीरो पे आउट हो जाएगा, उसके बाद I उसके think ये बाद अच्छा भी है कि every game there is someone new stepping up. वो अच्छा भी है. या Now या let us jump straight away into this match. So you guys tell me your two players from both sides who you feel would be big match winners in today's match. बताओ. who could change the course of the game, right? Yes. Who wants to go Hmm. first? भाई, यू स्टार्ट। चलो मैं ही Yes. बताता हूँ. मेरा फर्स्ट बेट होगी ऑन द अमृतसर लैड कि आज अभिषेक शर्मा कुछ करेगा. हम अमृतसरियों की शान. आज वो कुछ करेगा. आई थिंक टुडे इज हिज बाजी डे. खेल रहा है कि नहीं वो? कोर्स. आई थिंक इट विल बी एन अनचेंज साइड. Oh नहीं my चेंज God. करेंगे. अभिषेक इज अ बिग गेम चेंजर जो होगा. दूसरा आई एम गोना स्टिल बैक बुमराह कि बुमराह अपना दूसरा गेम चेंजर तो रहेगा ही एज इज ऑलवेज. दूसरे साइड से वन वन फिन एलन. द काइंड ऑफ बैटिंग दैट द गाय डज वो अलग ही प्लेन पे बैटिंग करता है. ही हैज नो प्री कंसीव्ड नोशंस. एक तो वो. दूसरा आई वुड से दूसरा आई वुड से द फास्ट बॉलर. आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम. द न्यूजीलैंड फास्ट मैट बॉलर. हेनरी। Henry? Matt Henry. I think Hmm. Matt Henry may surprise Indians with the early swing and the bounce. Hmm. ओके, मैं एक्चुअली सोच रहा था अभिषेक के बारे में और मैट हेनरी के बारे में भी आज. बट सिंस यू हैव गॉन विद देम, आई एम गोना चेंज माय पिक्स फॉर द पीपल हु आर गोना like players to watch out. The players to watch out for me for India, I think, um, Ishan Kishan, I'm thinking, because he has been in a good form, but he hasn't been able to sort of score, get a big score. Pakistan game के बाद तो ईशान किशन. And bowling में, obviously Bumrah is as a sort of business as usual. You expect him to do it, but I'm also thinking maybe Arshdeep also has a big role to play if he bowls well today.
If he picks wickets at the top, India will be really well positioned to win this game. For New Zealand, मुझे मैट हेनरी से भी डर लग रहा था, but I'm gonna pick Santner and Glenn Phillips. Santner because उसकी कैप्टनसी, उसकी बैटिंग और स्पेशली उसकी बॉलिंग, जिस तरह से वो फंसाता है बैट्समैन को, और Glenn Phillips for his fielding, for his batting, for his bowling as well off spin. So we might see McConchie or him bowling to our left-handers. तो ये मेरे पिक्स हैं. आई थिंक ग्रेट पिक्स. आप लोगों ने बहुत कुछ कवर कर लिया है, बट मेरे हिसाब से फॉर इंडिया आई वुड गो विद बुमराह फर्स्ट. उसके 4 ओवर्स काफी क्रूशियल होने वाले हैं. ऑफ कोर्स वी नो ही इज द बेस्ट अभी फिलहाल. I think one of the best fast bowlers that has ever played the game. So Bumrah is certainly going to be a game changer. India की तरफ से I would also back Abhishek. I think बहुत due हो गया है. I just hope he plays. I personally also don't He think will play. He I will personally also don't think India changes करेगा. बट बहुत सारे न्यूज खबरें सुनने को मिलती है कि 2 चेंजेस देख रहे हैं एंड ऑल दैट. पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बट आई वुड stick to the same Indian team. So my pick would be Bumrah and Abhishek as well. For England, for New Zealand, I would go with Daryl Mitchell. He's played some really good cricket against India, and if New Zealand have to do well, I think Daryl Mitchell is going to be one of their players that they would be dependent on. And my another pick would be Glenn Phillips. I think he will have a role to play in terms of bowling. In terms of fielding, of course, he's there, and then batting to hay. So Glenn Phillips and Daryl Mitchell will be my picks for. I think इस वर्ल्ड कप में the most interesting bit is that एक ही प्लेयर है जो इस टाइम दुनिया का बेस्ट फील्डर भी है और दुनिया का वर्स्ट फील्डर भी है, और वो है ग्लेन. कि वो इतने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच पकड़ लेता है जिसकी बात ही Yeah. नहीं कर रहा, वो सिटर डॉलिस छोड़ देता है. तो Do you know he has ADHD? मे बी या ही हैज Yeah, एडीएचडी. he has हो ADHD. जाता Yeah. होगा उस टाइम पे, Yeah. व्हाटएवर. Yeah. लेकिन आई थिंक दैट इज अ वेरी बिग डाइकोटमी दैट हैपेंस इन क्रिकेट, आई थिंक. Yeah. And coming to another question, do you guys feel that India will give a chance to Kuldeep in place of Akshar or no? Unchanged side. In place of Varun, I would say Yeah, Varun. yeah, Varun. मतलब होना चाहिए, but I don't think they would do. They would back Varun. But होना चाहिए. हाँ, in my opinion, if I was running the team, I would have changed because Varun has already I agree gone to with so many games, Pallu. and But Daryl Mitchell तो कुलदीप को फिर बॉलिंग करने नहीं Daryl देगा. Mitchell बहुत नीचे आता है, बहुत Daryl नीचे. Mitchell is New Zealand have ruined Daryl Mitchell's Yes, form. उसको नीचे भेज के वो बहुत अच्छी फॉर्म में था. बहुत अच्छी फॉर्म में था, खराब हो गई फॉर्म. तो बट क्या कुलदीप अच्छा ही कर लेगा. बड़ा ग्राउंड है, स्पेशली स्क्वायर बाउंड्रीज डिफिकल्ट टू हिट. तो probably would have I chosen. would stick to Varun, man. Come on. और पावर प्ले में उसको फिन एलन और टीम स्टाइफर्ड के अगेंस्ट बॉलिंग करा दूंगा. ये पिट गया तो KKR पिट गया, बाहर आ नहीं गया तो आपकी जो ये केकेआर वाली आ गई ना, लॉयलिस्ट वाली केकेआर की लॉयल्टी भी नहीं. और फिर वरुण हैज बीन the pitch, exactly the issue is the pitch is not exactly the most conducive to spin. You need a lot more guile and intelligence and a lot more whoop, which Kuldeep has. I know they are not going to change anything. फाइनल मैच में आप अचानक से भेज दोगे कि नहीं यू करेंगे, रिप्लेस द नहीं नंबर करेंगे, 1 मुझे पता T20 है, बॉलर. मुझे पता है, but still Kuldeep would have been a better option, but I know they are not going to change the side, but Kuldeep would have been a great option. yeah लेता वो वरुण थोड़ा सा एक्सपोज हो गया. ही इज वेरी शॉर्ट ऑन कॉन्फिडेंस, क्योंकि वो when people start hitting him, he goes into a shell, और वो तेज stays down. मीडियम पेसर बन जाता है. करेक्ट. Exactly. But I don't see. मतलब personally, I would not change Varun and bring in Kuldeep. I would stick to Varun because वो X factor है.
वरुण में मुझे ऐसा लगता है जो न्यूजीलैंड साइड को ट्रबल दे सकता है, तो आई वुड स्टिक टू वरुण एंड नॉट ब्रिंग इन कुलदीप, और स्पेशली फाइनल मैच में, और रिप्लेस कर रहे हो एक नंबर 1 T20 बॉलर और बोल रहे हो भाई अब तुझे मुझे कर आज देना। भी याद है 2007 में आई गेस यूसुफ पठान भी आ गया था उस टाइम पे, Yeah. चेंज उन्होंने हम्म किया था, तो इट्स नॉट एज इफ द चेंज हैज नॉट बीन डन बाय इंडियन टीम, तो ऐसा इट कैन रियली डू वंडर्स फॉर द टीम एज वेल, तो ऐसा हुआ है। Yeah. Do you know Varun is also right now the second leading wicket taker in this World Cup? यस But 10 the thing कितने is, 10 there's a lot विकेट्स हैं of उसके 13 भाई, wicket, 13 13 wickets. विकेट्स। against non-test playing nations. Yeah, yeah. Against Yes, US he picked up 3 और किसी के साथ 2 3 ऐसे करके, तो mostly उसके ग्रुप स्टेज में ही है wicket. मुझे तो एक बात बताओ, जो मेरा ग्रज रहा है इंडियन टीम से कि वी आर लीविंग बुमराह फॉर वे टू एंड, वी आर नॉट अटैकिंग विद बुमराह, वी आर यूजिंग हिम मोर डिफेंसिवली, तो डू यू गाइस फील कि बुमराह को इस बार शायद वो टॉप 3 ओवर में एक ओवर दें, और डू यू गाइस सी कि पहले 4 ओवर में आई आई हार्दिक और थिंक इट डिपेंड्स, अगर ये लोग ने हार्दिक और अर्शदीप को मारना स्टार्ट कर दिया तो बुमराह इज गोना कम, अदरवाइज अगर Yeah, ठीक ठाक स्टार्ट, अगर एक I, विकेट ले लेते हैं हार्दिक I, और अर्शदीप, yeah, तो आई yeah. डोंट सी, आई That's अगेन perfect. सी कि वो फेजेस में ही आएगा जैसे सूर्या लेकर आता है उसको। या इंग्लैंड वाले गेम में उसको परफेक्टली यूज किया था क्योंकि थोड़ी स्विंग हो रही थी, तो ही स्टक विद हार्दिक एंड अर्शदीप, एंड सॉल्ट एंड बटलर वर आल्सो नॉट इन फॉर्म, तो उस पे स्टिक किया और बाद में लाइक ही बोल्ड द परफेक्ट ओवर आई थिंक इन द इंग्लैंड गेम। तो बट अगेन फॉर मी अगेन वुड बी सॉर्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट, अगर वो एलन पागल हो गया तो उसको आउट करने के लिए लाना पड़ेगा। बट कल सुनील गावस्कर का कुछ वीडियो सुन रहा था मैं, ही रेकमेंडेड 2 चेंजेस, अगेन वी कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, एंड ही सेड प्ले रिंकू इंस्टेड ऑफ अभिषेक एंड ईशान और संजू से ओपन करो। No, I don't सो think Abhishek को तो they won't drop. अभिषेक को दे वोंट ड्रॉप, And Varun also they won't drop. Maybe like Varun का chance ज्यादा था, but they still won't do it. They won't drop him, and Rinku Singh, I don't think it makes sense. हम रिंकू की Yeah. यूटिलाइजेशन बड़ा कर लेते हैं, इधर एक्स्ट्रा फील्डर बेचारे को बुला के बस फील्डिंग कराते रहते हैं, वो कैच लेके चुम्मी दे देता है बॉल पे, बेचारे के साथ करना पड़ रहा है, बट जैसे जैसे हमारे एक फ्रेंड को बुलाते थे हमारे हिट एंड रन टीम में। तो रिंकू के साथ थोड़ा सा धक्का तो है ही है, बट ये करना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि रिंकू की इस टाइम पे जगह बनेगी, एंड वरुण को भी खिलाना ही पड़ेगा बिकॉज यू डोंट वांट टू अनसेटल अ गुड कॉम्बिनेशन, वो तो है। व्हाट डू यू गाइस थिंक कि अगर इंडिया टॉस जीतती है, डू वुड दे गो टू बैट और टू बॉल? आई वुड से दे वुड गो टू बैट, या लाइक वो एक यही एक विनिंग फॉर्मूला रहा है अब तक इंडिया, क्योंकि चेज में थोड़े घबरा जाते हैं जो अफ्रीका वाले गेम में देखा है, एंड स्पेशली इन फाइनल, और यहाँ पे रिकॉर्ड भी जो फर्स्ट बैट करता है उसका अच्छा है। इट्स नॉट लाइक मुंबई की जहाँ पे सेकंड बैटिंग इज मोर प्रेफर्ड, तो बट आई आई वुड से थिंक, बट सॉरी बल्लू टू कट यू ऑफ, आई थिंक इंडिया बैटिंग करे या बॉलिंग करे फर्क नहीं पड़ता है। I mean, they are in that zone, but it'll be interesting to flip that question. क्या नहीं, बात ये आप क्वेश्चन इसमें फ्लिप जीती करो, तो नहीं आ आप गया क्वेश्चन राशिद में। आप क्वेश्चन फ्लिप करो, न्यूजीलैंड, what would you think New Zealand would do if they win the toss? आई थिंक ये फाइनल है, फाइनल में इट इज कोई ऑलवेज भी जीतेगा बैट फर्स्ट ही that you करेगा। go to bat first rather than you chasing, and we don't Yeah. have to chase master now. ये सब नए बच्चे हैं, ये डर जाते हैं, डर जाते हैं। कांपना शुरू हो जाते हैं। Okay, so New Zealand, so we would like ideally आपके हिसाब से it would be ideal to bat first. Yes, The toss And is what happening what do you think New Zealand right would now. do? New Zealand would also bat first, final I में? think so. I think so. They would want to bat first, post a total, and then look at possibly making India toil hard for their runs. But there's also this factor of due factor. I don't know if that due factor is gonna play that important role at this time of the year or not. वो एक फैक्टर बस रहता है कि ड्यू थोड़ा का ना इशू पड़ जाए। Are you guys aware कि क्या चल रहा है ड्यू फैक्टर में? I'm just listening to it. अच्छा, वाह, रिकी मार्टिन ने अपना कंफर्म कर लिया। Yeah. तो एक एडवाइस तुम, व्हाट वुड यू से वुड बी द वुड कैन बी इंडियाज बिगेस्ट वीकनेस टुडे?
ये बताओ बिगेस्ट वीकनेस क्या हो सकती है आज? I can go and say अगर हम सेम टीम खिला रहे हैं तो हम्म the biggest weakness could be not having a good sixth bowler because I don't trust Shivam Dube. हाँ मुझे ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीत करके फील्डिंग लिया है पाजी, so they are going to रियली chase. ओके So they're going to chase, but again, my biggest concern, even last match में भी अगर वो सरप्राइज आई 30 थिंक की जगह पे 20 रन होता तो 3 छक्का जोफ्रा आर्चर मार चुका था. हाँ So मुझे ऐसा लग रहा है if they go with an unchanged team, then I think lack of a proper sixth bowler might just haunt India. What about नहीं you guys? मुझे भी वही लग रहा है, दैट्स बीन द कंसर्न बिकॉज बारिंग अर्शदीप एंड बुमराह, Hardik again can go for runs on a day, and then Akshar, if there is not much spin and like especially if it's ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स होंगे तो फिर वही लेफ्ट राइट वाला कर देते हैं कि इसको बॉलिंग मत कराओ वो, so that starts to happen, and then Varun has been in a very नहीं, अगर bad form. हमारे पास 5 बॉलर है तो सबको 4 ओवर करना ही है, तभी तो 20 ओवर Yeah, होंगे. but that's the issue ना कि जिस लास्ट गेम में अक्षर didn't bowl, है ना, तो they brought in Dubey. अक्षर का 1 ओवर Yeah, he didn't finish his quota. Yeah. शिवम ने किया. ओके, तो व्हाट वो अबाउट issue. Yeah. सॉरी पाजी. नहीं, आई ऑल्सो बिलीव द आई कॉन्कर विद यू गाइस कि इंडिया के सिक्स बॉलिंग ऑप्शन हैज बिन रियली बैड. शिवम दुबे को हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हार्दिक पांड्या बने, लेकिन वो बन नहीं पाता. उसके पास वो स्किल बॉलिंग में नहीं है जो हार्दिक पांड्या के पास है. वो जो बहुत एशियन पे Oh, they are मिडल ईस्ट playing Duffy. का. Sorry, Paji, to cut you off. हाँ हाँ. Surya says happy to bat first since we have been doing that pretty well. Always good to have runs on the board. For New Zealand, McConkey is out and Duffy is playing today. So वेरी सरप्राइजिंग बिकॉज अभिषेक के अगेंस्ट मुझे लग रहा था फर्स्ट ओवर में कॉन्की ही करेंगे. मैकॉन्की तो yeah. बहुत ही अच्छा खेल रहा था एंड आई वाज So लुकिंग कॉन्की. so maybe यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्योंकि बोल रहे थे कि पेसर्स को ज्यादा हेल्प होता है. Even we saw against in the डफी इज द टॉल गाय, राइट? tall guy. Yeah. तो जिस तरह से होपफुली उसको वो सीरीज में पढ़ रहे थे वैसे ही रन पढ़ते रहे, तो आई डोंट माइंड दिस चेंज. अच्छा. नहीं और मैं टू जस्ट फिनिश दैट थॉट, आई थिंक इंडिया के Yeah. जो लास्ट सिक्स बॉलर है वही एक दिक्कत है कि वो नहीं, वो उसको एंड में बहुत ज्यादा रन पड़ जाते हैं. वो बस वहां पर ठीक रहता है अगेंस्ट स्लाइटली लेसर टीम्स जहां बॉल हम्म. आ रही हो, वो थोड़े स्लोअर कटर्स डाल देता है, तो वो सही रहता है. जाते जाते सिंस वी आर शॉर्ट ऑन टाइम एज वेल, मेरा एक पॉइंट था जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था कि रिगार्डिंग दिस इशू ऑफ मैन ऑफ द मैच. मेरे इसमें दो तीन पॉइंट है, बस हेयर मी आउट ऑन दिस. फर्स्ट, व्हाई इज इट ऑलवेज कि हमेशा जो विनिंग टीम का बंदा होता है उसको काइंड ऑफ मैन ऑफ द मैच मोस्ट ऑफ द टाइम दे देते हैं रेदर Yeah. देन कि लूजिंग टीम के अच्छे परफॉर्मेंस से. जैसे बैटल डिजर्व्ड इट मोर देन संजू सैमसन, हम्म. तो ये मोस्टली नहीं होता, नहीं देते हो आप. दूसरा पॉइंट कि मोस्ट ऑफ टाइम ये क्यों होता है कि फील्डिंग में कभी नहीं दिया जाता मैन ऑफ द मैच. जैसे अक्षर पटेल फील्डेड ब्रिलियंटली, इट इज ओनली एक ही बार आई थिंक क्रिकेट की हिस्ट्री में वो फील्डिंग के लिए दिया गया है मैन ऑफ द मैच. एनी गेसेस किसको दिया जॉन्टी गया? रोड्स. ट्वेंटी रोड्स. तो आप अक्षर पटेल को दो उसके लिए यार, है वो इम्पैक्ट उसने बनाया, उसने सारे कैच किए, फील्डिंग की, तो उसके लिए देना चाहिए. ये उसके उसको देते नहीं है. और हमेशा, और एक तीसरा पॉइंट भी था कि पिच बैटिंग पैराडाइज थी, जैसे मुंबई Yeah. की बैटिंग पैराडाइज, तो 250 सबने मार दिया, ठीक है. तो स्किल तो वहां पर वो हुआ ना कि जिसने बॉलिंग अच्छी कराई है इस पिच में भी, Exactly. बॉलर को दो rather than कि जिसने अच्छी पिच पे अच्छी बैटिंग कर दी उसको दो. तो ये मेरे Yeah. तीन पॉइंट है, इसके बारे में तुम लोग बताओ. They always favor वही ना विनिंग टीम का बैट्समैन जिसने ज्यादा रन बनाए हो. क्यों? हमेशा इट्स लाइक वो है कि हाँ यार बाय डिफॉल्ट दे दो इसको, है ना. थोड़ा आई थिंक दैट हैज टू चेंज. ये कुछ चीजें होती हैं हर स्पोर्ट में जो बस जैसे चल रही हैं बाय डिफॉल्ट, है ना, जो कर दिया. सो आई थिंक आई एग्री विद यू बाजी कि इम्पैक्ट देखना चाहिए गेम पे, कहाँ से मैच पलटा, है संजू ना. सैमसन प्लेड वन फॉल शॉट, वो Yeah. आउट हो जाता. बैथल प्लेड नन. Yeah, exactly.
सो वो देखना चाहिए, इम्पैक्ट देखना चाहिए, किस सिचुएशन में बंदे ने आके गेम को पलटा है ना, कहाँ से गेम चेंज हुआ है, ऑल दोज फैक्टर्स शुड, एंड दे लाइक, ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा डिसाइड कर रहा है, कमेंटेटर्स का पैनल डिसाइड कर रहा है यार, लाइक दे आर ऑल एक्स क्रिकेटर्स. Yeah, I'm अब always आप surprised. I दे was दोगे आकाश चोपड़ा और इन लोगों को डिसाइड तो कैसे हो? सही बात. आकाशवाणी. But हाँ, I agreed. Last match में probably should have been Bumrah or Akshar, right? Even Sanju said it himself. So बट अक्षर ने तो एक ही कैच पकड़ा है, दूसरा कैच दो तो कैच शिवम दुबे ने पकड़े पकड़ा. थे. नहीं, दो ये भी technicalities पे जाओगे आप. इनको स्लैश डाल के उस बंदे का नाम डालना चाहिए. एग्जैक्टली. हाँ, वो चीज होनी. आई थिंक हाँ, कंटिन्यू गो एक परफॉर्मेंस से नहीं गेम बनता है, एक 97 से गेम नहीं बनता है, या एक छक्के से गेम नहीं जिताया जाता है. आई थिंक आई एग्री विथ योर व्यूज. आई थिंक लास्ट मैच में मैन ऑफ द मैच बुमराह को मिलना चाहिए था. मुझे ऐसा लगता है. अक्षर ऑब्वियसली ऐसा ही रूल ही चला आ रहा है जिससे हम फील्डर्स को मैन ऑफ द मैच अवार्ड नहीं देते हैं. बट आई वुड हैव थॉट बुमराह को with the kind of impact that he had with the last match उसको मिलना चाहिए था. And या फिर कंबाइन दे दो यार, कंबाइन दे दो. कौन सा उन्हें फाइट करना है कि आपको ट्रॉफी किसको घर लेके जाना है, तो कंबाइन मैन ऑफ द मैच अवार्ड भी दे सकते हो. एंड कमिंग बैक टू ससुर ऑफ द ईयर सकलेन मुश्ताक, आप ये उनके रिसेंट कमेंट्स के बारे में क्या टिप्पणी है कि वो रिसेंटली उन्होंने ये बोला है कि एक जो ऑपोजिंग टीम का कैप्टन जो होता है उसको ना पिच की फोटो खींच लेनी चाहिए क्योंकि इंडिया वाले ना पिच बदल देते हैं. ओह गॉड. आप उस पर में क्या कहना चाहेंगे? क्या इंडिया वाले पिच ऐसे कर देते हैं? पिच पे या तो फिर वो करेगा ना, एयर टैग लगा दिया करें, एक कोने पे उधर एक इधर, ये चेंज होगी तो पता लग जाएगा. I think that's the way. But I think हजम नहीं होता इन्हें क्या अभी इसके अलावा क्या. I've been really baffled. I've been following ex cricketers on Facebook, Instagram, कभी ना कभी रीलों में आ जाते हैं. The kind of hatred, not even hatred, the kind of stupid comments that they give. Yeah. अब मुझे एक चीज समझ नहीं आती. अब तुम टैप मैड में बैठे हो, तुम हारना मना में बैठे हो, कहीं पर भी है, अगर इंडिया वर्सेस एनी अदर टीम है, तुम लॉजिकली स्किल बेस्ड ऑब्जेक्टिव डिसीजन दो ना कि कौन जीतेगा, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका या इंडिया वर्सेस इंग्लैंड या इंडिया वर्सेस. हर में वो एक ही बोलेंगे, आज ना मुझे लग रहा है इंग्लैंड जीत जाएगी, आज मुझे लग रहा है इंग्लैंड जीत जाएगी, आज मुझे लग रहा है ये जीत जाएगी. और फिर जब पोस्ट मैच में आते हैं फिर कहते हैं वो ना उन्होंने अच्छा खेला लेकिन ना अंपायर ने फिक्स कर दिया है, अंपायर दोष कि उसने ये कर दिया, उसको देखना चाहिए, पिच में कुछ था वो देखना. ये उन्होंने इंग्लैंड ने कैच छोड़ दिया इसलिए हो गया, ये तो ये हो जाता. दैट्स पार्ट ऑफ द क्रिकेट ना. इतना अच्छा गेम नहीं खेल रही इंडिया, अभी अपना बेस्ट नहीं खेल रही इंडिया. और वो बाबा आमिर, ओ भाई साहब, उसने तो हमेशा सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगी इंडिया, लिख के ले लो सेमीफाइनल. अब देखो पहुंच गई फाइनल में. अभी क्या प्रेडिक्शन दिया उसने? अभी मैंने लेटेस्ट देखा नहीं कि इस बार लेटेस्ट नहीं देखा. बस आई नो ओनली वन कि शोएब अख्तर ने बोला था कि इंडिया जीत जाएगी. और इंडिया इवन आई थिंक ड्यूरिंग लास्ट गेम आई थिंक मोहम्मद हफीज आल्सो सेड कि इंडिया आर द फेवरेट्स. बट फिर और एक चीज और वो बोल लेते हैं कि अरे दे आर प्लेइंग इन देयर बैकयार्ड, उनको एडवांटेज है. भाई क्या हुआ पिछले साल, क्या हुआ आपके बैकयार्ड में? आपका भी तो सरप्राइज कि मोहम्मद हफीज इस बार क्या हुआ. आई हैव रिस्पेक्टेड मोहम्मद हफीज फ्रॉम देयर एक्स क्रिकेटर्स कि वो सही बोलता है पैनल में सब कुछ. मैंने उसका एक कमेंट सुना भी टैप मैड में, व्हिच वाज लाइक कि पता नहीं जो थर्ड अंपायर है इनका एंडी माइक्रोफ्ट क्यों रहता है, पता नहीं क्या सेटिंग की हुई है उन्होंने. हाँ जो भी मतलब कि वो भी ही वाज अलूडिंग टू दैट फैक्ट ओनली कि इनका अंपायर्स भी सेम ही रहते हैं, क्या बात है, कैसे वो चल रहा है. और ऐसे डम कमेंट्स मैंने देखे हैं पाकिस्तान क्रिकेटर्स के कि अलूडिंग टू मैच फिक्सिंग, जैसे कि इंडिया डिड नॉट वांट टू फेस साउथ अफ्रीका, इसलिए उन्होंने ना न्यूजीलैंड से फिक्स करा दिया कि जी तो न्यूजीलैंड हार दे, साउथ अफ्रीका हार जाए और ये फिक्स हो जाए. ऐसे मैं क्या बोलूं यार, मैं कहना नहीं चाह रहा यार. आप वो एक्चुअली लोग वही एक्सपेक्ट करते हैं ना जो उन्होंने खुद किया होता है. And one more thing, what is your comment on recent interview of Steve Buckner? वो बंदा बोलता है
वो बंदा बोलता है कि मैंने पहली बार मानता है कि मैंने सचिन को ना थोड़ा गलत आउट दे दिया। भाई साहब रिग्रेट है मेरा मुझे। तो उस टाइम ना ये खून खोलता था कि मैं उसको ना बर्फ की सिल्ली पे लेटा के उसको उल्टे लेटा के थोड़े बरसाऊं, जैसे वो करता ऐसे होके कि अब बॉलर पूरा आउट है। हम्म। भाई साहब उसने तो 2000 रन सचिन के तो ऐसे कम करा दिए, आउट हाँ, उसको गलत दे दे के। जो 2000 रन डीआरएस ने कम करा दिए। अगर डीआरएस होता तो सचिन के 4000 रन बढ़ जाते। और 2008 जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज थी, प्रोबेबली आई थिंक वुड हैव बीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज एवर। जैसे अभी 2021 वाली हम बोलते हैं, दैट probably इंडिया शुड हैव won। जो सिडनी वाला टेस्ट है भाई, प्रॉपर हम्म अंपायर ही वाज द मैन ऑफ द मैच इन दैट। उन्होंने हाँ, इतने डिसीजन दिए बकनर ने, और वो दूसरा जो था, देयर वाज दैट अनदर गाय दैट वी नेवर सॉ दोस टू अंपायर्स अगेन आफ्टर दैट। आई थिंक वो हम्म, इतनी गंदी अंपायरिंग की उन्होंने उस मैच में। एंड बकनर तो यार जब वो आ जाता था ना अंपायरिंग करने, भाई साहब ऐसा लगता था यार ये उनके टीम में 13 प्लेयर हो गए हैं आज, 12 भी नहीं 13 प्लेयर है सामने वाले की टीम में। सही बात है। चलो लास्ट क्वेश्चन ऑन द मैच। अब इंडिया बैटिंग कर रही है। व्हाट इज योर प्रोडिक्शन? 10 के रेंज में बताओ कि इंडिया कितने रन मार देगी। यू हैव अ रेंज ऑफ 10। पिच रिपोर्ट तो मैंने नहीं देखी है, बट आई वुड वांट एटलीस्ट लाइक 190 प्लस ऑन दिस पिच। यू आर सेइंग 190 to 200 at least। क्या? नहीं, यू वॉट नहीं, हम प्रिडिक्शन गेम खेल रहे हाँ, हैं, क्या प्रेडिक्शन होगा। प्रेडिक्शन। अच्छा, तो प्रेडिक्शन आई आल्सो वुड से 190। ओके, नहीं, रेंज बताओ, 190 to हाँ, तो 190 200। 190 हो गया तो प्लस माइनस 10 जुड़ेगा, या यू नहीं नहीं प्लस यूर 10। वन रे? +10 तो आई वुड गिव 185 to 195। ओके, ओके राशिद 200 to 210। 180 to 190। predictions on the result कि go who is gonna win this match and lift the trophy। राशिद बताएं आप। I think India, we are hot favorites, and again we have the opportunity to put runs on the board, and हमें पता होगा हमें क्या डिफेंड करना है, उस हिसाब से हम प्लान भी कर सकते हैं कि बुमराह को फर्स्ट ओवर देना है या क्या करना है। हम्म। So I think it was a good toss to lose. Again, strangely, why New Zealand opted to field, I don't understand. But again, I would maybe stick due to India. factor। Maybe due factor. Yeah, शायद probably going with अहमदाबाद में their उतना strength, ड्यू नहीं होगा। I'm not expecting अहमदाबाद में इतना ड्यू। but I think उनकी strength जो last match में I think उन्होंने दिया, हाँ, I think they are going with that। उनको ये भी पता ना कि इंडिया की जो वो है वीकनेसेस है सिक्स्थ बॉलिंग ऑप्शन। आई थिंक दैट दे Yes, वांट टू एक्सप्लॉइट yes, डाल yes. देंगे। Yeah, could be. So I would go for India. बल्लू। Okay. Um, yeah, of course, डर तो है दिल में, लेकिन I will go for India। माय ऑप्शन इज आल्सो इंडिया कि इंडिया शुड विन। लास्ट क्वेश्चन, हु डू यू सी आप एज। बाजी आधे घंटे से आपका लास्ट क्वेश्चन हो रहा है हाँ, ये। बस ये लास्ट क्वेश्चन है कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा आज। ओह, आप खुद ही स्टार्ट करो। मैं खुद स्टार्ट करूं। आई वुड से अभिषेक विल परफॉर्म ग्रेट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि बुमराह इज द कोहली ऑफ बॉलिंग। तो बिग कमत यार, कमत द मैन। तो बुमराह कुछ आज कर जाएगा, कुछ कर जाएगा। Okay, I would go with the Ishan Kishan। नाइस। My pick would be Sky. Oh, आई ओ I'm surprised no KKR players selected today। सरप्राइज्ड। लगता है टीम चेंज कर रहे हैं मुंबई नहीं, इंडियंस। पर्सनली मुझे भी ऐसा लगता है कि ईशान किशन, बट सिंस बल्लू picked ईशान किशन, maybe I'll go with Sky. चलो लेट्स सी। होपफुली हम Captain. तीनों ने इंडियन प्लेयर्स सिलेक्टेड किया, उन तीनों में से ये एक आपने तो साउथ जीतेगा। अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया वाली जर्सी क्यों में रखी है आज भाजी? ये तो 90s वाली साउथ अफ्रीका वाली लग रही है, वो हल्का सा है ग्रीन ना? और चलो ठीक है गाइस, लेट्स गो ओके, ऑल द बेस्ट। सी द मैच। होपफुली इंडिया विंस एंड हम तीनों के प्लेयरों में से कोई एक मैन ऑफ द मैच जरूर बनेगा। यस लेट्स सी यस, होपफुली And see होपफुली। you after the match ends after the with a match। trophy, यस hopefully. यस, Yes, hopefully। होपफुली होपफुली। Okay. Okay, see you। बाय Bye बाय। bye। Bye bye।